بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے سلطان محمود غزنوی سے لے کر اکبر جلال الدین محمد اکبر کنگ آف امپائر یہاں تک کی تاریخ کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، آج اس کی 17ویں قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، پچھلی قسط میں ہم بات کر رہے تھے جنگجو جو ایک اس کے تھے سلطان محمود غزنوی اور مشترکہ ہندوؤں کی فوج، وہ پنجاب کے علاقے میں آمنے سامنے تھی۔ دونوں فوجیں 40 روز تک آمنے سامنے بے حس و حرکت پڑی رہی۔ دونوں طرف سے پیش قدمی کرنے کے معاملے میں ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار اس سکوت کو ہندو نے ہی توڑا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مہیا کردہ مواقع سے فائدہ اٹھایا جنہوں نے دشمن کو مشتعل کرنے اور انہیں خندق کی طرف پیش قدمی کرنے پر اکسانے کے لیے 6000 تیر اندازوں کو سامنے بھیجا تھا کہ کھڑوں نے تیر اندازوں پر حملہ کر دیا اور سلطان کی موجودگی اور جدوجہد کے باوجود پسپا ہو گئے۔ ہندو انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ مسلمانوں کے مورچوں میں داخل ہو گئے اور زبردست خون ریزی شروع ہو گئی۔ نہایت مختصر وقت میں 5000 مسلمان شہید ہو گئے اس وقت۔ تاہم ہندوؤں کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مسلمانوں کی ایک منظم فوج نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ دراصل ایک ایسا واقعہ رونما ہوا اس وقت جو ہندوؤں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا تھا۔ محمود غزنوی کے ذہن میں دین اسلام کی تبلیغ اور ہندوؤں کے بتوں کی تباہی کا خیال جوش مارا تھا۔ اس نے فتح کے فوراً بعد مقدس شہر نگر کوٹ کی طرف پیش قدمی کی اور پہلی مرتبہ ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے مندروں کو زمین بوس کر دیا۔ اس نے پورے ملک کو آگ اور تلوار سے تباہ کرنے کے بعد بھیم کے مشہور قلعہ کا محاصرہ کر لیا جس کا شمار پنجاب کے مقدس خانقاہوں میں ہوتا تھا اور مال اور زر کا ذخیرہ تھا۔ یہ ایک ڈھلوانی پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا جس سے شعلے نکلتے تھے جنہیں موجودہ دور میں جلتے ہوئے مقدس پہاڑ کا جوالا مکھی کہا جاتا ہے۔ شمالی ہندوستان میں یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس میں ایک شاندار مندر تھا۔ اس کی چھت اور دروازے قیمتی دھات کے تھے۔ یہ شاستروں کی تعلیم کے لیے ایک مشہور اور معروف مدرسہ بھی تھا۔ چھاؤنی نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے قلعہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے اندر موجود راہب جنگ اور خون خرابے سے بہت کم واقف تھے، چنانچہ انہوں نے اطاعت کے لیے درخواست کر دی اور مندر کے دروازے کھولنے کے بعد فاتح کے سامنے اندھے منہ گر کر رحم کے لیے بھیک مانگی جو انہیں دے دی گئی تھی۔ سونے اور چاندی کی سلاخوں، جوہرات، سچے موتیوں، مونگیوں، ہیروں اور لالوں کی شکل میں مال غنیمت جسے بھیم پر فاتح کے قبضہ کے دنوں میں مضافاتی بادشاہوں سے جمع کر کے اس مندر میں رکھا گیا تھا۔ محمود غزنوی کے ہاتھ لگا یہ سب کچھ جو اس وسیع اور عریض خزانے کے ہمراہ غزنی واپس لوٹا۔ سن 1009 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اپنے دارالخلافہ کے باہر میدان میں ایک بہت بڑا اجلاس منعقد کیا جس میں اس نے اپنے عمرہ اور حیران و پریشان لوگوں کے سامنے پنجاب سے سونے کے تختوں، قیمتی پتھروں اور بے بہا قیمت کے زیورات کی شکل میں لائی گئی دولت کو پیش کیا۔ اس نے اپنے سرکاری افسروں کو ان کے منصب اور رتبے کے مطابق قیمتی تحائف بھی دیے۔ اس وقت سن 1011 عیسوی محمود غزنوی نے تھانسر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ ہندو اس کا اسی طرح احترام کرتے تھے جس طرح مسلمان مکہ مکرمہ کا کیا کرتے ہیں۔ آنند پال نے بے سود ہی بادشاہ کو تھانس کے خزانے پیش کیے اور اس سے وعدہ کیا کہ شاہی خزانے سے ہر سال اسی قدر ادا کرایا گیا اور اس کی مہم پر اٹھنے والے جملہ اخراجات کی ادائیگی کرے گا۔ اس کے علاوہ 50 ہاتھی نہایت بیش قیمت تحائف پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن محمود غزنوی نے سارے ہندوستان سے بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کرایا ہوا تھا۔ اس نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے شہریوں کو
लूट लिया। इनके बड़े बड़े अजीम और शान मंदिरों को तबाह और बुतों को पाश पाश कर दिया। इन बुतों में सबसे अहम बुत को जगसूम कहा जाता था, और इसके बारे में हिंदुओं का अकीदा था कि ये रोज़े तख्लीक से मौजूद है। इसे बेशुमार टुकड़ों की सूरत में गजनी, मक्का मुकरमा और बगदाद रवाना किया गया ताकि गलियों में पांव तले रौंदा जाए। कहा जाता है कि महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी ने इस मौका पर 2 लाख कैदी गजनी रवाना किए। इस दफा बहुत सा माल गनीमत भी हासिल किया गया था। अब आते हैं 1013 ईस्वी को, जिसमें 7वें हमले का जिक्र है। 1013 ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक बहुत बड़ी फौज के हमरा बलवात के पहाड़ों में वाक़या नंदोना के खिलाफ पेशकदमी की और भरपूर हमला के बाद छावनी के हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। आनंदपाल के बेटे और जानशीन जयपाल दोयम ने जब ये महसूस किया कि वो सुल्तान का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, तो इसने अपनी फौज के हमरा कश्मीर का रुख किया। महमूद गजनवी ने पहाड़ी इलाका में एक हाकिम को तैनात किया और बगैर कोई वकिया फर्द गुजाश्त किए कश्मीर की तरफ रवाना हो गया। इस पर लाहौर के राजा ने सूबा को खारबाद कहा और पहाड़ों की तरफ फरार हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने कश्मीर की तमाम अजीम शान दौलत को लूट लिया और वहां के बाशिंदों को दीन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया और लूट मार के बेशबहा कीमती सामान के साथ अपने दारा खुलफा की तरफ लौट गया था। अब आते हैं 8वें हमले की तरफ, हिंदुस्तान पे 8वें हमला के 2 साल के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने चंद बागी सरदारों को सजा देने और चंद किलों को फतह करने के लिए, जिन पर गुज़श्ता मुहिम के दौरान हमला नहीं किया गया था, दोबारा कश्मीर का रुख किया। इनमें से सबसे अहम लोकोट का किला था, जो अपनी बुलंदी और मजबूती के लिए बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा के दौरान इस मुकाम को फतह करने के लिए सुल्तान की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई और मौसम सरमा शुरू होने पर सुल्तान को इस मुहिम को तर्क करके मजबूर होकर गजनी वापस जाना पड़ा था। अब आते हैं 9वें हमले पे। 1017 ईस्वी के मौसम बहार में सुल्तान 1 लाख घुड़सवार और 20,000 प्यादा फौज के हमरा कन्नूज की तरफ बढ़ा। इसने कश्मीर की शुमाली पहाड़ों का रास्ता अख्तियार किया। कन्नूज का राजा बड़ी शान और शौकत और जाहो जलाल का हामिल था, लेकिन दफा के लिए पूरी तरह तैयार न होने के बायस इसने अमन पर सुलह कर ली। इसके बाद इसने मेरठ की तरफ पेशकदमी की। इसके बादशाह हरदीत राय ने भी अतात कबूल कर ली थी। फिर जमुना के किनारे पर आबाद महावन की तरफ बढ़ा और इसे तस्कीर कर लिया। राजा कील चंद ने मायूसी की हालत में पहले अपने बीवी बच्चों को कत्ल किया, इसके बाद अपनी तलवार की नोक को अपनी जानिब करके अपना खात्मा भी कर लिया। तब इसने मथुरा के बेहतरीन शहर की तरफ रुख किया। वो कृष्ण बासदियों के लिए वक्फ था। कलील मुजाहमत का सामना करने के बाद इसने लूट मार शुरू कर दी गई थी। तमाम बुतों को या तो पाश पाश किया या जला दिया गया था। ज्यादातर मंदिरों को मसमार किया और सोने और चांदी की सूरत में बहुत बड़ा खाना लूट लिया। सुल्तान महमूद गजनवी 20 रोज तक कन्नूज में ठहरा। इस दौरान शहर में खूब आतिशबाजी और गारतगरी की गई। चंद छोटे राजाओं को मती करने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी लूट मार की दौलत और बेशुमार कैदियों समेत गजनी की तरफ लौटा। इसकी फौज ने अपनी तरफ से जो लूट मार की थी वो सरकारी खजाने की लूट मार से किसी तरह भी कम ना थी। महमूद गजनवी हिंदुस्तान में अपने क्याम के दौरान हिंदुस्तान की फन तामीर की खूबसूरत से बड़ा मुतासर हुआ था। अपने दारुल खिलाफा में पहुंचने के बाद इसने वहां पत्थर और संगे मरमर की एक शानदार मस्जिद तामीर करवाई। इसने इसे कालीनों, फानूस और सोने और चांदी के साजो सामान से मजीन किया। वो इसे आसमानी दुल्हन कहता था। इसके दरबारी उमरा ने भी इसकी तकलीद की। वो दारुल हुकूमत को निजी महलात और सरकारी अमारात से मजीन करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। महमूद गजनवी ने सरकारी खजाने की मदद से शाही मस्जिद के करीब और जवार में एक अजीम और शान जामिया, नहायत आलम फाजल मुसन्नफीन की कुतब पर मबनी दारुल मुताला, कुतब खाना, कुदरती अजायबात और फन के नमूनों पर मुश्तमिल अजायब घर तमीर कराया। फन तमीर के ज़ौक़ के शौक में अजाफा हुआ और मुख्तसर से वक्त में सुल्तान महमूद गजनवी का
दारुल-खुलाफा, खूबसूरत मसाजिद, 12 दरियों, फुआरों, तालाबों, माराबी कनालों और चुबच्चों से मज़ीन हो गया। वाज़ाकता और कारीगरी के लिहाज से गुज़श्ता अदवार की कोई इमारत इनके बराबरी नहीं कर सकती थी। साल 1019 में सुल्तान महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्ला के पास अपनी फतवात की एक सरगुज़श्त दास्तान रवाना की। इसलिए इस शहर के मुसलमानों के एक अजीम और शान इज्तिमा के सामने पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने कुरान अर्ज के दूर दराज इलाके में मुसलमानों को हासिल होने वाली फतवात पर बहुत खुशी मनाई। अब आते हैं 10वां हमला 10वां, जो कि 1021 ईस्वी में हिंदू राजाओं की मुतहदा फौज ने कनूज के राजा कंवर राय पर हमला कर दिया, क्योंकि इस राजा ने महमूद गजनवी से इल्हाक कर लिया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने सुल्तान की तरफ पेश कदमी कर दी, लेकिन इससे पेशतर के वो कनूज पहुंचता, इस पर बंदील खंड कलंजर के राजा नंदा ने कब्जा कर लिया। इसने कंवर राय और इसके मुतहद सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी मौत का बदला लेने के लिए सुल्तान कलंजर की तरफ रवाना हुआ और नंदा राय को भागने पर मजबूर कर दिया गया। इस फतह के बाद महमूद गजनवी ने कश्मीर की तरफ पेशकदमी की और रास्ते में लोकोट के नकाबले तस्कीर किला का मुहासरा कर लिया। तब वो लाहौर में दाखिल हुआ और अनंतपाल के कनौज के राजा के खिलाफ मुतहदा फौज में शमूलियत के बायस इंतकामन इसने अपने फौजी दस्तों को शहर की लूटवार का हुक्म दे दिया। यहाँ पर बेशुमार दौलत इसके हाथ लगी और राजा ने जब अपने आप को दुश्मन का मुकाबला करने में नाकाम पाया तो पनाह हासिल करने के लिए अजमेर की तरफ भाग गया। इसी साल मौसम बहार में महमूद गजनवी ने मफतूहा सूबों पर अपने सूबेदार मुतय्यन किए और गजनी को रवाना हो गया था। इसने लाहौर का इंतजाम अपने पसंदीदा मशीर और जनरल मलक अय्याज के सपुर्द किया, जिसका नाम बहुत सी रवायात और अपने आका के अरशादात में मौजूद है। मलक अय्याज ने लाहौर का किला और फसील तामीर कराए, शहर को वसी और खूबसूरत बनाया। महमूद गजनवी के इस मकबूल आम हाकम के दौर में लाहौर इल्म और फजल का गवारा बन गया था और गजनी से लोग यहाँ आकर आबाद हो गए। इनमें हजरत मखदूम शेख अली गंज बख्श अजमेरी भी शामिल थे। दादा गंज बख्श शहर के बाहर जिनका मजार दादा गंज बख्श के नाम से मशहूर है और मुसलमान इसकी बहुत तकरीम और तज़ीम करते हैं। महमूद गजनवी ने अपने नाम के निसब से लाहौर को महमूद गजनवीपुर कहना शुरू कर दिया था। इसने लाहौर में सिक्के मजरूब कराए जिन पर अरबी और हिंदी की अबारतें लिखी हुई थी, जैसे अल-कादिर बिल्ला, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। हुकूमत की दायम हाथ दीन पढ़ा महमूद गजनवी ने अल्लाह के नाम से इस धर्म को 418 हिजरी में महमूद गजनवीपुर में मजरूब कराया। पेशानी पर ऐबक मोहम्मद अवतार नरवीपति महमूद गजनवी, गैर मरई सिर्फ एक है। अल्लाह के नाम पर इसको 418 हिजरी में महमूद गजनवी पर पुर में मजरूब किया गया था। अब आते हैं हमला 11 नंबर हमला। तो दोस्तों 2 साल बाद महमूद गजनवी ने कलंजर के राजा नंद राय को मजा चखाने के लिए दोबारा हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी कर दी थी, क्योंकि गुज़श्ता मुहिम के दौरान वो सजा से बच गया था। वो इसके खिलाफ लाहौर के रास्ते से बढ़ा और ग्वालियर से गुजरने के बाद इसने इसके किले का मुहासरा कर लिया था। राजा ने इताअत कर ली। इस तरह वो महफूज रहा। नंद राय ने बर वक्त इताअत और कीमती तोहफे पेश करके अपने आप को आफत से बचा लिया था। इन्हें कबूल कर लिया गया और अपने इलाका पर कब्जा बहाल रखा गया। इसी तरह महमूद गजनवी का 12वां जो हमला है वो काठियावाड़ के साहिली शहर सोमनाथ के मशहूर और मारूफ मंदिर की दौलत और तकद्दस के बारे में सुनता चला आ रहा था। वहां पर हिंदुस्तान के सभी हिस्सों से पुजारी जमा होते थे। हिंदुओं का अकीदा था कि सोमा देवता, जिसके नाम पर यह मंदिर मशहूर था, इसको तमाम अरूर पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। इसके बारे में इस अकीदे का इजहार किया जाता था कि वो तमाम
तनाखों को बाकायदा बनाता है और रूहों को सजा और जजा देने की ताकत भी इसी के पास है। मंदिर बहुत आलीशान था, तमाम पुजारी इसकी बड़ी तज़ीम और तकरीम किया करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम यहीं रुकते हैं। तो दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त सोमनाथ के मंदिर से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।